Good morning to everyone. Now I am starting e-commerce, and in e-commerce we have already studied about what the e-commerce is, what are the different types of modes of payments, and what are the different strategies which we make while while uh, while creating a e-commerce business. Now the thing is that what are the security issues which are involved into it. Now my must be visible to each and everyone. So you can see that first we should know what do you mean by security. So what security means is that when a secure when a secure transaction is being done, it is a great help of data communication for having a good e-commerce business, right? And for doing so, we should understand what are the security issues which comes while having e-commerce business. Now, security issues means that if I hope each and everyone is aware of networks, and that networks means that whenever you are ready to have a transaction, then the computer to computer data communication must be very secure, and that security has to be given by each and every network in which we enter. That means that whatever the network is being used, that should be totally secure. Now what is security issue? Security issue is when we are creating a basic when we are creating basics of transactions. Means we have already understood that when we are making a transaction, that means the transaction is between two or more computers, or the transaction is between from one network to the another network. And then the network which through which the transaction takes place has a security issues which we have to understand so that we can have a secure transactions. And now how can we have a secure transactions? Secure transaction, for making a secure transaction, you must have watched that whenever you make a transaction, then the people who are transacting must face a third party. And what is that third party is? That third party means whenever we are making a transaction, we are using payment gateways, and that payment gateways are the securities which is being provided from one network to the network. Certain companies has been authorized, certain companies has been authorized, हिंदी में समझाइए ना सर. certain companies सर has हिंदी been में. authorized so that we can have a secure transaction. Means कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शंस आप करते हैं वो सिक्योर होना चाहिए. लेकिन वो सिक्योर कैसे होगा? वो सिक्योर तभी होगा जब हमारे पास जो सिक्योर माध्यम जो हमारे पास है वो क्या है? थर्ड पार्टी हमारे पास सिक्योर्ड माध्यम है. और वो थर्ड पार्टी क्या होता है? थर्ड पार्टी हमारे पास जो होता है वो पेमेंट गेटवेज कहलाते हैं. एंड व्हाट आर दिस पेमेंट गेटवेज? तो ये पेमेंट गेटवेज वही पेमेंट गेटवेज हैं जिनके थ्रू हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, और जो कि हमारा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं कि हमने क्या खरीदा और हमने क्या बेचा, और जो हमने खरीदा उसके लिए हमने कितने पेमेंट्स पे किए हुए हैं, और उसकी जो पेमेंट्स है वो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए हमारे पास पेमेंट गेटवे होता है.
कुछ सर्टेन कंपनीज ऐसी हैं जिसको कि ये अथॉरिटीज दी जाती हैं, और ये अथॉरिटीज किसके द्वारा दी जाती हैं? ये अथॉरिटीज हमेशा जो दी जाती हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा दी जाती हैं। गवर्नमेंट देती है किसी न किसी कंपनी को। जैसे कि आप लोग हमेशा ध्यान देते होंगे कि जो आपका डिफरेंट कंपनीज है, जैसे आईसीआईसीआई, जैसे आपका जो एचडीएफसी है, ये सब पेमेंट गेटवेज हैं। और ये पेमेंट गेटवेज क्या करते हैं? ये पेमेंट गेटवेज जो है बेसिकली आपको ये क्लियर करते हैं कि जो भी आपने पेमेंट किया है वो सिक्योर है, प्लस जो ट्रांजैक्शंस है वो ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी एक इश्यू ऐसा क्रिएट करती है जिससे कि जब तक आपके पास पेमेंट पहुंचता है और उसका पूरा वो डिटेल्स रखती है ताकि गवर्नमेंट के साथ कभी भी इश्यू हो तो वो उसको प्रेजेंट कर सके। कहने का मतलब हम लोग कभी भी आपस में जब भी बातें करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग करते हैं कि अच्छा चलो बेट लगाते हैं, राइट? लेकिन वो जो बेट लगाते हैं वो अगर 2 पर्सन अपने आप में एक दूसरे के साथ अगर बेटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तीसरा अगर बंदा बीच में ना हो तो वे लोग दोनों अपने वादों से मुकर सकते हैं। लेकिन एक बंदा अगर तीसरा होगा, अगर वो न्यूट्रल काम करेगा तो उसको जो है इस तरह की दिक्कत किसी को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूट्रल बंदा होगा, वो जो थर्ड पार्टी होगा, वो ऑथेंटिसिटी रखेगा और उसी विश्वास पे हम लोग जो है बेट करते हैं, राइट? तो ये जो बेट हम लोग करते हैं उसी तरीके का ये ट्रांजैक्शंस होता है कि अगर हमने 500 रुपए की कुछ चीजें खरीदी हैं तो हमने कंपनी को दे दी हैं। कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी को जब हम लोग ये 500 रुपीज पे करते हैं तो उसके बदले में जो सामान चाहिए होता है, वो जो गुड्स या प्रोडक्ट्स जो हमें चाहिए होता है, वो प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास तुरंत हमें मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि इट टेक सर्टेन टाइम फॉर शिपिंग, वो आने में समय लगता है, लेकिन पेमेंट तो पहले चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी है वो क्या करती है, वो सिक्योरिटी देती है कि आपका जो पेमेंट है वो सिक्योर है। वो हमने उस कंपनी को भेज तो दिया है, लेकिन आपने जिस तरीके से भेजा है वो सारी ऑथेंटिसिटी मेरे पास है। कल को अगर उसने जो पेमेंट, जो आपको प्रोडक्ट, जो कंपनी, आप जिस कंपनी से आपने प्रोडक्ट खरीदा है, वो कंपनी अगर आपके पास सही से प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाती है तो वी आर देयर टू सॉल्व द इश्यू। इसीलिए थर्ड पार्टी का बीच में होना जरूरी होता है। नाउ लेट अस हैव द सिक्योरिटी इश्यूज। पहले ये देखिए SET, सेट। बेसिकली सिक्योरिटी के लिए जो है हम लोग सेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है, लिखा है इसमें कि जो आपका सेट होता है वो क्या है? इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सेट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल standard for securing credit card transaction over insecure network। जो इनसिक्योर नेटवर्क होता है उसके ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग SET का प्रयोग करते हैं। ये जो SET है वो यहाँ पर SET is not a payment system but rather a set of security protocols। ये पेमेंट सिस्टम नहीं है बल्कि क्या है? एक सेट ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है। प्रोटोकॉल्स का मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट दैट एनेबल यूजर टू इम्प्लाई द एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। कहने का मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स है वो आपको ये प्रोवाइड कराता है कि जो आपका पेमेंट है वो सिक्योर हो जाए। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? SET का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि ये एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्निक है जिसमें कि जो है हम लोगों को ये पता चलता है कि हमारा जो पेमेंट्स है वो कितना सिक्योर है। अब ये देखिएगा कि इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगे हुए हैं, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो SET के हैं उसने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो हम लोगों को
चेक करना होता है कि क्या क्या मेथड्स हमारे पास है। तो ये जो मेथड्स है, अच्छा ये एक मिनट, ये जो SET है, ये SET का मतलब समझते हैं नहीं आप लोग? ये सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है। इसका मतलब होता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू ही हम ई कॉमर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स whatever the electronic media is present through which we can make the software or any hardware in use so as to protect our so as to protect our transactions. अब यहां पर ये देखिए कि लिखता है SET allowed, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। यहां पे देखिएगा SET allowed parties to identify themselves, मतलब जो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस है वो क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स पैरिटीज टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स। वो ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे अंदर जो भी चीजें डेवलप्ड है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास जो सिक्योर पेमेंट सिस्टम बना हुआ है, उस सिक्योर पेमेंट सिस्टम को हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में अगर 1000 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वो 1000 ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हर एक ट्रांजैक्शन एक दूसरे से भिन्न होगा और किसी को कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। SET allows parties to identify themselves to each other and exchange information securely so that we can exchange our information securely. अब उसके बाद देखिएगा कि जो आपका SET है वो क्या यूज करता है। नाउ SET uses cryptography building algorithm। अब आप लोग क्रिप्टोग्राफी शायद अभी नहीं पढ़े होंगे और कुछ लोग तो पढ़ लिए होंगे। इसमें क्या है कि जो आपका DCN जो नेटवर्क है उसमें एक क्रिप्टोग्राफी की चीज भी है पढ़ने के लिए। तो उस क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं और उसमें कितने लेवल्स ऑफ सिक्योरिटीज इन्वॉल्व्ड होती हैं, जो कि आप लोग नेक्स्ट कुछ आगे के सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें हो सकता है कि आगे की पढ़ाई में आप लोगों को ये जो क्रिप्टोग्राफी है वो काफी डीप में पढ़ना होगा और इस क्रिप्टोग्राफी में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होगी कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस चीज के लिए किस समय बनेगा और वो सारे ट्रांजैक्शन किसके जरिए ऑपरेट हो पाएंगे और जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें कितने लेवल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस हम लोगों के पास सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि केवल हम लोग अपनी चीजें को सिक्योर कर सकें, बल्कि इसलिए भी होते हैं क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी प्रक्रिया भी होनी चाहिए जिसके कारण हम आइडेंटिफाई कर सके कि कहां से कौन सी चीजें भेजी गई, कौन सी चीजें नहीं भेजी गई। सपोज कीजिए कि आज हमारे पास हमारे जो हाथ में एक बहुत ही बड़ी चीज है जो कि स्मार्टफोन्स जिसको कहते हैं, और उस स्मार्टफोन के जरिए हम लोग कई सारे काम मिनटों में ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए पहले आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले बहुत दिक्कतें होती थी उन चीजों को करने में। जैसे एग्जाम्पल कि आपका आज जो है आज के डेट में आप किसी को भी मैसेज, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, इमेजेस हो या फिर ऑडियो वीडियो हो, वो आप मिनटों में भेज सकते हैं। जबकि पहले के सिस्टम में इट वाज अनईजी, इंटरनेट भी था तब भी इट वाज अनईजी, क्योंकि उस समय आपके जो वीडियोस हैं वो सपोर्टिव नहीं होते थे भेजे जाने लायक।
तो आज का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो इतना मजबूत हो चुका है कि हम लोग आज के डेट में कुछ भी मिनटों में भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप जैसे ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ चुके हैं जिनके थ्रू हम लोग कितना भी मैसेजेस वगैरह भेजते हैं। तो ये जो मैसेजेस हम लोग भेजते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन विच इज बीइंग मेड। ये एक एक ट्रांजैक्शंस होता है जो नेटवर्क पे हम लोग करते हैं, और ये सारे ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस सिक्योर्ड होते हैं। क्यों सिक्योर्ड होते हैं? क्योंकि अगर वो टू वे कनेक्शंस है तो उसमें भी सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आप कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते होंगे, तो उसमें कई बार आपने नोटिफिकेशंस देखा होगा कि उसमें ये लिखता है कि इट इज अ सिक्योर्ड कनेक्शन, इट इज अ सिक्योर्ड कनेक्शन। तो वो लिखने का मतलब ये है कि व्हाट्सएप ने ये मेंटेन किया है कि आप जिस किसी नेटवर्क पे भी हैं, उस नेटवर्क से अगर आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम आपके मैसेज को किसी भी नेटवर्क पे पहुंचाएंगे विथ अ सिक्योर्ड कनेक्शन। तो ये चीजें पॉसिबल है। लेकिन वहीं पर जूम पर हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज आ रही है। क्यों? बिकॉज हम लोग ट्रांजैक्शंस तो कर रहे हैं, बट देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, जिसके कारण कई सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग जूम में हम लोग आईडी से कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी बंदा उस चीज को ज्वाइन कर सकता है। वी डू नॉट रिक्वायर अ पर्टिकुलर ID or password. We do not put the password into it. We just need a link, and we need a link to get added, or we just need a link so that we can join to the Zoom meetings. वैसे secured meetings जो हैं वो आपके और हमारे बीच तो हो रहा है, लेकिन ये क्या पता कि आपने या किसी और ने उस मैसेजेस को कहां कहां शेयर कर दिया है। वर्ल्ड, आज के डेट में वर्ल्ड इज लाइक अ वेरी स्मॉल थिंग। सब कुछ हमारे हाथ में है। जो हमने आपको मैसेजेस भेजे हैं ज्वाइन करने के लिए, वो अगर आप यूएस में भी भेज सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी भेज सकते हैं, और कहीं से लोग कहीं भी कोई भी ज्वाइन हो सकता है। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते होंगे जहां पर कि सारे लोगों को अलाउड नहीं होगा ज्वाइन करना, लेकिन वो लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सिक्योरिटीज हैम्पर होंगी। तो इसी तरीके से इसी लिए जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग थर्ड पार्टी का प्रयोग करते हैं, जो कि SET प्रोवाइड करता है, सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है। होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। आगे देखिए, SET uses cryptographic building algorithm that in effect would have let merchants substitute a certificate for the user's credit card number. कहने का मतलब कि वो जो सिक्योरिटी SET जो है वो प्रोवाइड करता है, वो डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। इसलिए हम लोग का जो जितना भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के जो डिटेल्स हैं वो हम लोगों को मेंटेन करवा देता है थर्ड पार्टी, और उस थर्ड पार्टी के जरिए हम लोग जो है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का प्रयोग करके हम लोग जो है सिक्योर रहते हैं कि हमारे जो मनी ट्रांजैक्शंस हैं वो सही जगह पे, सही समय पर और बिल्कुल सही तरीके से वहां पे पहुंच रहा है। यही नहीं, अगर वो ट्रांजैक्शन में कोई मिस्टेक होता है तो SET टेक्स केयर that the error should be cleared immediately। कहने का मतलब कि जो एरर्स आ रहे हैं, हो सकता है कि ट्रांजैक्शन आपने किया हो, कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं और वो सही जगह पे पहुंच नहीं पाता, सही से किसी को मिल नहीं पाता। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है पेमेंट गेटवे से को या फिर हम लोग जो कंपनी है उसको, उन दोनों को से बात कर सकते हैं कि हमारा पेमेंट जहां पे पहुंचना था कुछ एरर्स आ गए हैं, हमारे बैंक से जो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, हमारे बैंक से पैसे निकल चुके हैं, लेकिन जहां पहुंचने थे वहां पहुंचे नहीं हैं।
तो वो लोग कहते भी हैं it will take 48 hours time or some time so that it will be sent back to the same. Hopefully each and everyone is understanding it. और आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो चैप्टर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें हम लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस पे बनते हैं और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. इट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर. अब ये देखिएगा कि उसी के बाद जो है हमारे पास है SSL. SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर. सिक्योर सॉकेट लेयर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास इंटरनेट कम्युनिटी पे इतने सारे लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सिक्योर सॉकेट लेयर बनाया गया है जो कि ये डिफाइन करता है या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू हमारे जो कनेक्शंस हैं वो और सिक्योर हो जाते हैं. जैसे कि आपका एग्जांपल में ये देखिए कि जो आपका SSL है, SSL इज द सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑफ चॉइस फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट कम्युनिटी. कहने का मतलब ये है कि जो SSL है वो एक ऐसा सिक्योर कम्युनिकेशन है जिसमें कि इंटरनेट कम्युनिटी पर हम लोग बहुत सारे चीजों को यूज कर सकते हैं. अब मान लिया कि इंटरनेट पर आपके पास थर्ड ही पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को भी चूज करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. पेमेंट गेटवे होता है, डिफरेंट पेमेंट गेटवेज होते हैं, जैसे बिलडेस्क, ICICI, HDFC, ये तीनों अलग अलग सिक्योर सॉकेट लेयर्स हैं. जिसको चाहिएगा आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं. तो 3, 4, 5 होने से क्या होता है कि देयर इज अ कॉम्पिटेंसी इन द मार्केट, और सभी लोग इस होड़ में लगे रहते हैं कि भाई हमारे पास से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो. क्यों? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन से भी कुछ ना कुछ जो है उन पेमेंट गेटवेज को भी पे किए जाते हैं, और उसी से वो पेमेंट गेटवे चल रहे हैं, उसी से वे लोग अर्न भी कर रहे हैं, और वो अर्न जो है करोड़ में होता है. क्यों? क्योंकि एक एक ट्रांजैक्शन पे हम लोग 10-11 रुपए का पेमेंट करते हैं, और वो 10-11 रुपए का जो पेमेंट है वो अगर एक आदमी, एक बंदा कर रहा है, तो सोच लीजिए कि पूरे इंडिया में कितनी करोड़ की जनता है, और वो दिन भर में 24 आवर्स में कितने सारे पेमेंट्स करती होगी. तो ये सारे पैसे उन पेमेंट गेटवेज को जाते हैं. There are many application of SSL in existence. बहुत सारे ऐसे SSL exist करते हैं. Since it is capable of securing and transmission over TCP. अब TCP जो ट्रांसफर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है, TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी नेटवर्क्स में कि जो TCP होता है वो क्या करता है, वो आपके जो लेयर्स हैं उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. तो डिफरेंट लेयर्स, कौन से डिफरेंट लेयर्स? नेटवर्क के डिफरेंट लेयर्स, और नेटवर्क के डिफरेंट 7 लेयर्स होते हैं, और वो आप लोगों को पता ही होगा. अब यहाँ पे ये देखिए कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसको हम लोग TCP के माध्यम से हम लोग सिक्योर करते हैं. और सिक्योर HTTP और HTTP is a familiar application of SSL. जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसके जरिए जो हमारे एप्लीकेशंस खुलते हैं उसको सिक्योर करने में ये हमारी मदद करता है. कैसे करता है? बाय क्रिएटिंग पासवर्ड्स और ट्रांजैक्शंस. हमेशा देखिएगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें बहुत बार पासवर्ड्स लगाया जाता है. अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसमें जो है पासवर्ड्स लगाए जाते हैं. सबसे पहले आप जिस बैंक से ट्रांजैक्ट, इंटरनेट बैंकिंग अगर किसी से कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो इंटरनेट बैंकिंग आपका सबसे पहले क्या करेगा कि आप किसी न किसी बैंक में ट्रांजैक्ट करने के लिए उस बैंक में एंटर करेंगे. बैंक में एंटर करने के बाद क्या करेंगे आप कि जो आपका ट्रांजैक्शंस है उस बैंक में एंटर करने के लिए आप आईडी और पासवर्ड डालेंगे.
आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जो ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो उसमें प्रोफाइल पासवर्ड्स होते हैं, तो या आइदर उसके माध्यम से, नहीं तो फिर आपके ओटीपी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड्स होते हैं उसके माध्यम से भी हम लोग जो है उसका प्रयोग करते हैं, और हम लोग ये सिक्योर्ड हो जाते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस किया जा रहा है वो हमारे द्वारा ही किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे चीज है जिसको कि ध्यान में रखा जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट ड्राफ्ट ऑफ SSL प्रोटोकॉल, Secure Socket Layer Protocol, the point of the protocol is to provide privacy and reliability. Privacy और reliability जो है इस ये Secure Socket Layer जो है हमें privacy और reliability देता है। Privacy तो देता ही है और reliability भी देता है कि ताकि हम उस पर rely कर सकें कि हमारा काम क्या हुआ है। The protocols released further explains that 3 points combine to provide connection security. जो प्रोटोकॉल्स है उसमें क्या होता है कि ऐसे कई सारे पॉइंट्स कंबाइन करके हमारे कनेक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। अब ये जो तीन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, तो ये जो 3 पॉइंट है वो है प्राइवेसी, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एंड रिलायबिलिटी। प्राइवेसी क्या होता है, जो प्राइवेसी है वो एनक्रिप्टेड कनेक्शन के थ्रू होता है। तो एनक्रिप्टेड कनेक्शन जो है, कनेक्शन थ्रू एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है, एनक्रिप्शन का मतलब ही होता है कि जो हमारा डेटा है, जो हमारे मैसेजेस हैं, that has to be coded in such a way that it should be encrypted in such a way so that it cannot be read by any other user until and unless it should reach to the specified person. कहने का मतलब कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो हमारे मैसेजेस जो हम भेजते हैं वो इतने सिक्योर होने चाहिए, और उस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग अपने मैसेजेस को एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट करने का मतलब होता है कि सारे मैसेजेस को किसी न किसी रूप से इस तरीके का बना देना कि दूसरा कोई भी यूजर जिसके पास ये मैसेजेस जाए उसको वो पढ़ ना पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो मैसेजेस भेजते हैं वो मैसेजेस सही से हमें दूसरे को नहीं मिल पाता है। आप देखते होंगे कि पहले के कुछ दिन पहले जब स्मार्टफोन्स नहीं था तो कई बार ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे मोबाइल्स होते थे हमारे पास, उसमें अगर कोई मैसेजेस भेज दें, पिक्चर मैसेजेस, तो पिक्चर मैसेजेस वो रीड नहीं कर पाता था, और उसके बदले हमारे पास जो मैसेज आता था उसमें क्या होता था, स्क्वायर 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 ऐसा करके कुछ दिखता था। तो दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। इस तरीके से एनक्रिप्ट कर दिया जाए डेटा को कि सभी लोग उसको रीड न कर पाए। तो उसको रीड करने के लिए कई बार हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम लोगों के पास देखिएगा कि कोई ऐसा पिक्चर फॉर्मेट आप वर्ड में खोलना चाहें तो वो नहीं खुलेगा, और वो आपको कुछ इस तरीके का मैसेज देगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा उसने क्या लिख दिया। तो वो बेसिकली क्या होता है, सिक्योरिटीज होते हैं जिसको कि वो रीड नहीं कर पाया, वर्ड उसको रीड नहीं कर पाया, जिसके कारण कि हमारा जो मैसेजेस है वो सही से डिक्रिप्ट नहीं हो पाया। तो वो एनक्रिप्टेड था, और जिसका कि डिक्रिप्शन मतलब उसको फिर से ओरिजिनल मैसेज को अगर हम एनक्रिप्ट कर देते हैं तो उसको एनक्रिप्शन कहते हैं। उसमें अगर कोई चेंजेस करके और भेजते हैं तो उसको हम लोग एनक्रिप्शन करते हैं, और फिर से उसी एनक्रिप्शन को जब ओरिजिनल मैसेज में चेंज कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिक्रिप्शन कहते हैं। तो ये जो प्राइवेसी है वो कनेक्शन थ्रू एनक्रिप्शन और एनक्रिप्शन होना चाहिए। आगे देखिए, दूसरा है आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका ऑथेंटिकेशन है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर मेरे पास कोई मोबाइल फोन है, मुझे हाथ लग गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर को मैसेज करके ये कह दूं कि अरे प्राइम मिनिस्टर भाई साहब आज तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, गोली मार देंगे। वी कैन नॉट पुट लाइक दिस।
क्यों? क्योंकि अगर मैसेज अगर हम उनको भेजते हैं तो वो मैसेजेस जो है वो सिक्योर्ड मैसेजेस होते हैं, और ये बातें जिसने भी कही हैं उस तक आराम से पहुंचा जा सकता है। इसीलिए ये आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन हमारे पास होता है, ताकि हम लोग उसको पकड़ पाए कि इस तरीके का गलत मैसेज किसने भेजा है। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि हम लोग व्हाट्सएप पे भी जो मैसेजेस कर रहे हैं वो मैसेजेस को सिक्योर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अभी कितने सारे प्रोटोकॉल्स लगाए गए हैं। और अगर मान लिया कि हम लोग कोई गलत मैसेज भी फॉरवर्ड करते हैं तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। इसलिए जो है हम लोगों को ये ऐसा नोटिफिकेशंस मिलता रहता है कि हम लोग गलत मैसेजेस को फॉरवर्ड ना करें, पहले उसकी जांच कर लें। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी है कि हम लोग का जो मैसेजेस होता है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सिक्योर्ड कनेक्शन पर है, ऐसा हम बिल्कुल आशान्वित हो जाते हैं, जिसमें कि हम लोगों के पास कई बार जो मैसेजेस हम लोग भेजते हैं या ट्रांजैक्शन भेजते हैं तो हम लोग ये सोचते भी नहीं है कि ये सिक्योर नहीं होगा। मतलब क्या है कि हम लोग उस पर पूरी तरीके से रिलाई कर चुके हैं, हम लोग उसको देख चुके हैं कि नहीं भाई ये सब जो मैसेजेस हैं वो सिक्योर्ड मैसेजेस हैं, और हम लोग जो है उस पर रिलाई कर सकते हैं, उस पर हम लोग अपना मंतव्य रख सकते हैं कि भाई नहीं ये एक सिक्योर कनेक्शन ही होगा। नेक्स्ट पार्ट है एनक्रिप्शन। मैंने आपको समझा दिया है कि एनक्रिप्शन क्या होता है। क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग अ मैसेज in such a way so as to hide its substance is called encryption। ये encryption है, और इसमें क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा को जब आपके कंप्यूटर से या आपके किसी भी डिवाइसेस से बाहर जाते हैं, नेटवर्क के तरफ जाते हैं, तो नेटवर्क में जाने से पहले वो एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। और जो ये एनक्रिप्शन टेक्निक है वो आप लोग पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में, ठीक है? तो उसमें जो है आपको ये चीजें पढ़नी है कि हाउ डेटा गेट्स एनक्रिप्टेड। क्रिप्टोग्राफी डील्स विथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेजेस। जो क्रिप्टोग्राफी है वही डील करता है कि आपके मैसेजेस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाए और उसको किस तरीके से मैसेज को कोड कर दिया जाए, ताकि आपका जो एनक्रिप्शन है वो सही तरीके से हो पाए। और ये जो एनक्रिप्शंस होते हैं वो एनक्रिप्शंस कुछ और नहीं है बल्कि आपके मैसेजेस हैं जिसको की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। तो दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद जो है आपको जो भी पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था तो आई हैव गिवन यू टाइम। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और इसको आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये स्क्रीनशॉट्स आप लेते हैं तो ये सिर्फ मोबाइल में या आपके लैपटॉप पे ही रह जाएगा। इसको जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे, तो वो आपका अपना नहीं होगा। याद रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स दिया है या जिसका आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं केवल यही एक नोट्स हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, आप इससे कई गुना बेटर नोट्स बना सकते हैं। आप इसको जो है एक रेफरेंस मानिए, और इसमें देखिए जैसे कि मैंने प्राइवेसी, आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन और रिलायबिलिटी को बहुत शॉर्ट में लिख दिया है। आपको इतना शॉर्ट में नहीं लिखना होगा, आपको इसके लिए थोड़ा एलाबोरेट करना होगा, और उस एलाबोरेशन के लिए आपको इसके चैप्टर को पढ़ना होगा, तभी आप एलाबोरेट कर पाएंगे। तो ये जो नोट्स है वो आप लोग धीरे धीरे तैयार करते चले जाइए। क्लासेस विल बी टेकन रेगुलरली, और ये जो क्लासेस हैं वो मैं आपको भेजता रहूंगा कि किस तरीके से क्लास लेनी है। समय हमारे पास बहुत कम बच रहा है और अब 40 मिनट्स ओवर हो चुके हैं। सो थैंक यू, thanks a lot for attending my classes. We'll meet in the next class very soon. Thank you, sir. Thank you, sir.
थैंक यू सर।